Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start a new chapter which name is 18th century political formation. तो यहाँ पर बच्चों पॉलिटिकल में क्या क्या चेंजेस आए, कैसे फॉर्मेशन हुआ 18th सेंचुरी के दौरान, तो वही हम पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट कर लेते हैं हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर से बच्चों. तो यहाँ पर हाइलाइट्स ये पढ़ने वाले हैं. डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स क्या है, इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ मराठा पावर. देन यहाँ पर 18th सेंचुरी इंडिया के अंदर बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के बारे में, जिसमें है लेटर मुगल्स, महमूद आजम शाह, महमूद अकबर एंड महमूद कम बख्श. देन सेकंड कैटेगरी में है बच्चों इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, जिसके अंदर ओल्ड मुगल प्रोविंसेस के अंदर अवध, बंगाल, हैदराबाद, वतन जहागीर ऑफ राजपूत, मैसूर, हरिदर्स अली, टीपू सुल्तान एंड मराठास में शिवाजी. देन यहाँ पर जाट्स के अंदर बच्चों बदन सिंह एंड चुरमनन एंड सिक्स के अंदर महाराज रंजीत सिंह. देन पर्शियन इन्वेशंस के. नेक्स्ट करते हैं बच्चों अब स्टार्ट चैप्टर को. The 18th century AD witnessed major political changes in Indian subcontinent. It saw the rapid decline of Mughal Empire, the rise of semi-independent states, the growth of regional cultures, and the establishment of the British Empire in India. It also marked the end of We'll read about the emergence of new political groups in the subcontinent during the first half of the 18th centuries, roughly from 1707 when Aurangzeb died till the third battle of Panipat in 1761. तो 18th century AD में बच्चों बहुत सारे ऐसे मेजर पॉलिटिकल चेंजेस आए इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर, जिसमें हमने देखा रैपिडली तरीके से डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का, और काफ़ी सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी रही जिन्होंने ग्रोथ किया रीजनल कल्चर्स के बेस पर, और एस्टेब्लिश्ड हुआ ब्रिटिश एम्पायर इंडिया के अंदर. और यहाँ पर मिडवेल टाइम पीरियड के अंदर दौरान बच्चों जो इंडियन हिस्ट्री रही है उसमें काफ़ी चेंजेस दिखने को मिलते हैं. तो इस चैप्टर के अंदर हम वही पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें न्यू पॉलिटिकल ग्रुप इन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के अंदर, और रफली हम देख पाते हैं 1707 तक. और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बच्चों जो यहाँ पे हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इन 1761 में. तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स के रीजन क्या है. Though the Mughal Empire lasted till 1857, the tradition of great Mughal rulers ended with the death of Aurangzeb in 1707. There was several reasons for the decline of Mughal Empire. The most important of these, the Aurangzeb's Deccan policy. Then यहाँ पर बच्चों मुगल एम्पायर जो रहा वो 1857 तक रहा, और सबसे लास्ट आप बोल सकते हो यहाँ पर एक रूलर के रूप में रहे औरंगजेब, जिनकी मृत्यु हुई 1707 में बच्चे. और यहाँ पर काफ़ी रीज़न निकल कर आते हैं जिस वजह से मुगल एम्पायर को डिक्लाइन किया गया, और यहाँ पर वो मेन रीज़न क्या निकल के आता है औरंगजेब की डक्कन पॉलिसी को लेकर. तो यहाँ पर मैप दिया गया है बच्चों मुगल एम्पायर 1705 में. Under the successor, the efficiency of the impartial administrations broke down. It became increasingly difficult to later Mughal emperors to keep a check on their powerful mansabdars. Nobles appointed as the governors, subedars, often controlled the offices of the revenue and military administrations, diwani and fauzdari as well. This gave them extraordinary political, economic and military powers over vast regions of the Mughal Empire. As the governors consolidated their control over the provinces and the periodic transmissions of revenue to the capital declined. In the 18th century, with the declines of the Mughal authority and with pressures of Jahangir's agricultural economy began to face a crisis. This led to peasants' revolts, since the noble Jagirs were liable to be transferred frequently. They did not find necessary to follow a long-term policy of agricultural development. As the burden on the peasantry increased, they were often deprived of their very means of survival. As a reaction to this excessive exploitations, the peasants had no options but to protest. Very often the peasants protested against the states by the refusing to pay the revenue and were up the arms against the Mughals. Then यहाँ पर बच्चों एक चीज़ निकल कर आती है जिस वजह से एक आप मेन रीज़न मान सकते हो. तो यहाँ पर जो थे बच्चों एफिशिएंसी आप मान सकते हो सक्सेसर के रूप में, जो एफिशिएंसी रही है एक इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर वो धीरे धीरे कम हो गई थी, जिसकी वजह से और चीज़ें यहाँ पर डिफिकल्ट हो गई थी बच्चों मैनेज करना.
कैसे यहाँ पर जो मुगल एम्परर्स थे वो चेक करने के लिए एक पावरफुल मनसबदार को अपने पास रखते थे और वो अपॉइंट करते थे बच्चों गवर्नर्स को, और गवर्नर्स जो इनको सूबेदार बोला जाता था, उसके बाद वो कंट्रोल करते थे सारे रेवेन्यू को, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसको दिवानिया और फौजदारी नाम दिया जाता था। और इस तरह से बच्चों सिस्टम फॉलो किया जा रहा था, लेकिन सब क्या कर रहे थे, अपने अकॉर्डिंग ही काम करते जा रहे थे बच्चों। और ये रेवेन्यू इतना बढ़ाते जा रहे थे धीरे धीरे 18th सेंचुरी के अंदर अंदर कि मुगल अथॉरिटी अब डिक्लाइन करने लग गई थी इन चीज़ों को। और लोग जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जुड़े हुए थे बच्चों, वो क्राइसिस फेस कर रहे थे और ये रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी पीजेंट्स हैं बच्चों, तो वो क्या करने लगे, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने लग गए ताकि हमें रेवेन्यू ना दे पाए। और क्योंकि रेवेन्यू देंगे कैसे जब वो क्राइसिस झेल रहे हैं, उनकी क्रॉप्स नहीं हो रही हैं बच्चों, तो वो किस तरह से देंगे। तो ये एक्सप्लॉयटेशन जो थी, एक रिएक्शन था, वो भी एक बड़ा कारण है यहाँ पर। लेटर मुगल्स, after the death of the Aurangzeb, a series of the incompetent Mughals rulers followed him. They were collectively called as the later Mughals. When Aurangzeb died, three of his sons, Mahmud Azam Shah, known as the Prince Muzam, and Mahmud Akbar and Mahmud Khan's Baksh, started fighting for the throne, and Muzams, the eldest of them, became the victorious in the war of the succession. He is known in the history of the Bahadur Shah I, and Bahadur Shah I ruled from the 1707 to 1712 AD. During his brief reign, the Sikhs were defeated by the Mughals. However, we shall see later that it did not prevent the former from building a strong independent kingdom in Punjab. Bahadur Shah I was succeeded by a weak and incompetent ruler, Jahangir Shah, in 1712. During his tenures, the Sayyid brothers and Sayyid Hussain Ali and Sayyid Abdullah assumed the role of kingmakers. They replaced him with the Farrukhshites in 1713. His nephew and later skilled Jahandar Shah, Muhammad Shah, was made of the emperor by the Shahid brothers in 1720. He stripped the Shahid brothers of their powers but did not try to strengthen the empire. Powerful governors established independent kingdom in different areas. Then यहाँ पर when his rule ended in 1748 and the Mughals empire existed only the name. Then यहाँ पर बच्चों क्या स्टोरी हुई थी कि जो मुगल्स के बाद की बात की जाए, आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब के बाद के, तो यहाँ पर बच्चों जो मुगल रूलर्स थे उनकी सीट भी तो फुलफिल करनी थी, वहाँ पर भी कोई बिठाना था। देन उनको बोला जाता था लेटर मुगल्स। और उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद बच्चों उनके 3 बेटे थे जिनका नाम था मोहम्मद आजम शाह, जिनको हम प्रिंस मौजम जानते हैं, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद कम बख्श। देन बच्चों यहाँ पर उनके बीच में फाइटिंग शुरू हो गई कि मुझे तख्त चाहिए, मुझे सिंहासन पर बैठना है, और उनके बीच में लड़ाई शुरू होने के बाद बच्चों ये कहलाई हिस्ट्री ऑफ द बहादुर शाह I। और बहादुर शाह I ने वहां पर रूल किया बच्चों 1707 से लेकर 1712 AD तक, और ये एक ब्रीफ रेन रहा। देन यहाँ पर बच्चों जो सिक्स थे उनको भी डिफीट किया गया मुगल्स के थ्रू, और उसके बाद बच्चों ये चीज़ें चलती रही और वॉर होती रही। इंडिपेंडेंट किंगडम बन चुका था यहाँ पर धीरे धीरे पंजाब के अंदर, और बहादुर शाह I थे जो बच्चों वो धीरे धीरे सक्सीड होते चले गए, लेकिन उनके इतना इनकम्पीटमेंट की वजह से, इतना रूलर प्रॉपर तरीके से काम ना करने की वजह से वह वीक भी हो रहे थे। एंड शादा जफर 1712 during the tenure the Sayyid brothers and Sayyid Hussain Ali and Sayyid Abdullah assumed the role of king makers के लिए रोल प्ले कर रहे थे। और उसके बाद 1713 में यहाँ पर फर्रुखशायर्स के थ्रू उनके जो नेफ्यू थे उनको मार दिया गया, और फिर वो उन्होंने पूरा का पूरा जो तख्त होता है बच्चों, जो सियासत होता है, वो उन्होंने हासिल कर लिया। नेक्स्ट है बच्चों पर्शियन इन्वेशंस। In 1739 AD, Nadir Shah, the rulers of the Persia, invaded India and he plundered Delhi of its wealth and took back with him, among other valuables, the peacock throne and the Kohinoor diamond. And 1739 AD में बच्चों नादिर शाह जो पर्शिया के रूलर थे वो इंडिया के अंदर आते हैं, और यहाँ पर बच्चों उनकी काफ़ी वेल्थ, हमारी जो वेल्थ होती और यहाँ पर कोहिनूर डायमंड था, उसको भी यहाँ से ले जाते हैं। Before the Mughal Empire could recover from his attack, Ahmad Shah Abdali of Afghanistan attacked India in 1748 AD. He invaded India repeatedly over the next few years. He captured Punjab and defeated the Marathas in the Third Battle of Panipat in 1761 AD. And these inventions quickened the process of the disintegration of the Mughal Empire. Then यहाँ पर Mughal Empire बच्चों इन चीज़ों को रिकवर ही नहीं कर पा रहा था, वो यहाँ पर ले गए थे, वेल्थ भी ले गए। देन यहाँ पे पिकॉक थ्रोन से वो कोहिनूर डायमंड
पार्लियामेंट भी चुरा कर ले गए और यहाँ पर कंटिन्यूसली बने भी रहे। और अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान के अंदर रहते थे कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे इंडिया के ऊपर 1748 एडी में, और उन्होंने बच्चों कंटिन्यू ये काम करते हुए कैप्चर कर लिया पंजाब को भी और मराठास को भी डिफीट कर दिया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 एडी के अंदर। देन नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों रिसर्च जंक्शन के अंदर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वर इन द रीजंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द ग्रेट मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। एंड नॉलेज जंक्शन के अंदर आफ्टर हैविंग कनक्यूर्ड कर दिया गया था कंधार्स, काबुल्स एंड द पेशावर्स, अहमद साद अब्दालीज इन्वेडेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन जनवरी 1748 विद 12,000 वेटरन ट्रूप्स। एंड ग्रेस्प एंड ग्रेन के अंदर बच्चों बंदा बहादुर led the first 6 revolt. He was captured in 1715 and put to death in 1716 at Delhi. Emergence of new states में दिया गया है बच्चों, नया टॉपिक दिया गया है emergence of new states कैसे बने। The declines of the Mughal empires was followed by the rise of independent states of Sikhs, Jats, Rajputs, Marathas, Awadh, Bengal and Hyderabad. All these rulers was dedicated to their states and worked continuously for their consolidations. These states can be divided into 3 categories, which are old Mughal provinces. The old Mughal provinces such as Awadh, Bengal and Hyderabad were extremely powerful and quite independent state, but the rules of these states did not break into their formal ties with the Mughal emperor. Then बच्चों emergence of new states के अंदर डिक्लाइन कर दिया था यहाँ पर मुगल एम्पायर को, और धीरे धीरे बच्चों इंडिपेंडेंट स्टेट्स आने लग गए थे, सिख्स के, जाट्स के, राजपूत, मराठास, अवध, बंगाल, हैदराबाद। और ये यहाँ पर बच्चों जो रूलर्स थे वो काफी डेडिकेटेड थे और कंटिन्यूअसली बच्चों अपने साम्राज्य को अच्छे से बनाने में लगे हुए थे। और यहाँ पर बच्चों पूरा जो स्टेट थी ब्रॉडली तरीके से इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला था ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। ओल्ड मुगल प्रोविंसेस में यहाँ पे अवध, बंगाल और हैदराबाद को रखा गया जो एक्सट्रीमली पावरफुल थे और इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूप में काम कर रहे थे। नेक्स्ट है वतन जागीर्स ऑफ राजपूत्स। So these states enjoyed considerable independence under the Mughals and included several Rajputs principalities, many Rajput kings, partially those belonging to Ambars and Jodhpur had several under the Mughals with distinctions. Then यहाँ पर बच्चों considerable किया गया independence के रूप में, and यहाँ पर बच्चों जो राजपूत थे उनके principalities को माना गया और राजपूत किंग्स यहाँ पर बैठे हुए थे जिसमें अंबर, जोधपुर का आप नाम सुन सकते हो, जिसमें थे मुगल्स with the distinction and states under the control of Sikhs and Marathas। जो यहाँ पर सिख्स और मराठा के कंट्रोल में थे वो थे the last group of included Sikhs, Marathas and others such as the Jats and seized their independence after long drawn named campaign. Old Mughal provinces. Amongst the states that were carved out of the old Mughal provinces in the 18th century, 3 stands out very prominently. These were अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। तो यहाँ सभी के बीच में बच्चों हम देख पा रहे हैं जो मुगल प्रोविंसेस थी 18th सेंचुरी के अंदर, तो यहाँ पर 3 मेन थी जिसमें हम अवध, बंगाल और हैदराबाद का नाम देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ लेते हैं पहले अवध के बारे में। सो अवध और औध emerged is an independent state under the Sadat Ali Khan 1680 से 1739 and he was the first among rulers who were known in the history as the Nawab of Awadh. The later Mughal Emperor Mahmud Shah gave him the title of the Burhanul Mulk. A major achievements of the Sadat Khans was the reduce the size of the Jagirs and the hampers of Jagirdars, office holders who had them. He was appointed to the post of the Subedas Nawab, governor of Awadh. And Sadat Khan was succeeded by his nephew and son-in-law Safdarjung in 1739. During the later years of the Mughal Emperor Mahmud Shah, he gained complete control of administration in the Mughal Empire, and Awadh became completely independent under the descendants of Safdarjung, and Lucknow, which is now the capital of the states of Uttar Pradesh, was also the capital of the Nawabs of Awadh. It became famous as a great center of art and culture. Then बच्चों यहाँ पर जब अवध की बात करते हैं तो अवध क्या है जिसको औध नाम से भी जानते हैं, ये हम करते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट को जो अंडर थी किसके बच्चों, सादत अली खान के 17 से लेकर बच्चों यहाँ पर 1680 से लेकर 1739 तक थी। और यहाँ पर बच्चों एक रूलर के रूप में काम किया हिस्ट्री में जिनको जाना जाता था नवाब्स ऑफ अवध के नाम से। एंड मुगल्स एम्परर्स मोहम्मद शाह
ने इसको टाइटल दिया था बुरहानुल मुल्क के नाम से। और इस काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी बच्चों। साइज ऑफ जागीर को लेकर नंबर ऑफ जागीरदार से यहाँ पर अपॉइंट किया जाता था पोस्ट के बेस पर और उनके द्वारा काम किया जाता था अवध में। और यहाँ पर सदत खान थे बच्चों, उनके बाद उनके सक्सीड के रूप में यहाँ पर आए उनके नेफ्यू और सन इन लॉ सफदरजंग जिनका नाम था, वो थे 1739 में आए। और उसके बाद बच्चों मुगल एम्परर धीरे धीरे मोहम्मद शाह के पास आ गया, जिन्होंने कंप्लीट कंट्रोल ले लिया पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और पूरे मुगल एम्पायर के ऊपर। देन नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों बंगाल के अंदर। Bengal gradually broke away from the Mughal control under Murshid Qali Khan, who was appointed as the Naib Deputy to the governors of the province, although never a formal Subedar. And Murshid Qali Khan very quickly seized all the power that went with that office. He established law and order and maintained strict control over the foreign tradition campaigns, especially the officials of the English East India Company. However, his policy did not prove to be long-lasting. And Sirajuddaulah, the last important rulers of this line, was defeated by the British in the Battle of Plassey 1759. Then बच्चों बंगाल की बात की जाए तो बंगाल जो था ग्रेजुअली यहाँ पर टूटता जा रहा था, ब्रोक अवे कर रहा था मुगल को, और मतलब मुगल से यहाँ पर छूटता जा रहा था। जब वहाँ पर मुर्शिद काली खान के अंडर में था, उनको अपॉइंट किया गया था नायब के रूप में, डिप्टी ऑफ गवर्नर के रूप में अपने प्रोविंसेस को संभालने के लिए। और धीरे धीरे जो मुर्शिद काली खान थे बच्चों, वो क्विकली तरीके से उन्होंने सीज तो कर लिया था, पावर अपनी दिखा दी थी, लेकिन वो पूरा प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एस्टेब्लिश किया उन्होंने, लॉ को एस्टेब्लिश कर लिया, मेंटेन किया सभी चीजों को, स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई करने शुरू कर दिए। लेकिन बाद में बच्चों जब उनका यहाँ पे सिराजुद्दौला आए और लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर के रूप में जब उन्होंने काम किया तो उनको हरा दिया गया था, किसके थ्रू? ब्रिटिशर्स के थ्रू इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757 के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों हैदराबाद। द ओरिजिनल नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ द autonomous states of the Hyderabad was the Chinchkale Khan. The Mughals emperors and Farrukhshiars, while appointing him as the viceroy of the Deccan in 1713, and conferred on him the title of Nizamul Mulk, and the Nizam occupied this post of the viceroy till 1750. He carved out of the state of Hyderabad, which he ruled as an independent ruler. He appointed mansabdars and granted them jagirs without the permissions of the Mughal rulers. Mughal Emperor Muhammad Shah was powerless to stop him and had to agree to all his decisions. The successor of the Nizamul Mulk were known as the Nizams. Then हैदराबाद की बात की जाए तो ओरिजिनल नेम बच्चों जो फाउंडर हुआ था वो यहाँ पर ऑटोनोमस स्टेट ऑफ हैदराबाद का जो नाम था बच्चों वो था चिनचकले खान के थ्रू। एंड मुगल एम्परर थे बच्चों वो थे फरुखशियार्स, और वो अपॉइंट किए गए थे बच्चों वायसराय ऑफ दक्कन इन 1713 में। कन्फ्रेंट करते हैं एक टाइटल जिनका नाम था बच्चों निजामुल मुल्क के नाम से, उनको ऑक्युपाइड कर लिया गया था उनकी पोस्ट को वायसराय के रूप में 1715 में। और बाद में बच्चों उनको कार्ड कर दिया था स्टेट ऑफ हैदराबाद में, और वो रूल कर रहे थे इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में। और उन्होंने बच्चों अपॉइंट किया था मनसबदार के रूप में भी, और जैसे वो जागीर को संभालते थे विदाउट परमिशन ऑफ द मुगल रूलर। एंड वहां पर मुगल एम्परर थे मोहम्मद शाह जो एक पावरलेस थे बच्चों, मतलब उनके पास किसी तरह की पावर नहीं थी, डिसीजन लेने की पावर नहीं थी। देन उनके सक्सेसर के रूप में आए यहाँ पर निजामुल मुल्क, जिनको जाना गया निजाम्स के नाम से। तो यहाँ पर देख सकते हो निजाम्स की फोटो बच्चों आप। नेक्स्ट है the Watan Jagirs of the Rajputs. Many Rajput kings, particularly those belonging to Amber and the Jodhpurs, had served under the Mughals with distinction. In exchange, they were permitted to enjoy considerable autonomy in their Watan Jagirs. In the 18th century, these rulers now attempted to extend their control over adjacent regions. Ajit Singh, the rulers of the Jodhpur, was also involved in the factional politics at the Mughal court. These influenced Rajput families' claims at the Subedari of the rich provinces of Gujarat and Malwa. Raja Ajit Singh of the Jodhpur held the governorship of Gujarat, and the Savai Raja Jai Singh of the Amber was the governor of Malwa. Then बहुत सारे राजपूत किंग्स भी आए बच्चों यहाँ पर, जो राजपूत किंग्स है तो बिलोंग करते थे अंबर से, जोधपुर से, इस तरह से वहाँ पे सर्व करते थे और अपना काम वहाँ पर देते थे और परमिट करते थे सभी चीज़ों को। देन यहाँ पर बच्चों 18th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे रूलर्स थे जो एक्सटेंड करना चाहते थे, अपने कंट्रोल करना चाहते थे अपने एडजेसेंट रीजन्स को भी, जिसमें अजीत सिंह का नाम भी आता है जो रूलर ऑफ जोधपुर थे, और ऑल्सो इन्वॉल्व
रिजॉल्व द फैक्शनल पॉलिटिक्स इन द मुगल कोर्ट। और यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल राजपूत जो फैमिलीज जो थी बच्चों वो भी क्लेम करती थी सूबेदारी को, एंड रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा में जो थी। और राजा अजीत सिंह जो जोधपुर में थे वो पूरी गवर्नरशिप संभालते थे गुजरात की बच्चों, एंड सवाई राजा जयसिंह थे वो अंबर वॉज द गवर्नर ऑफ मालवा कहलाते थे। नेक्स्ट है बच्चों, सवाई राजा जयसिंह इज फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल्स एट जयपुर एंड वाज गिवन इन सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722 में उनको मिल गई थी बच्चों। नेक्स्ट है पंजाब अंडर द सिक्स। The Sikhs, who were a hardy and the fearless race, became a great political changes to the Mughal authority in the 16th century. The relations between the Sikhs and the Mughals started becoming sour when the former supported the rebellions of Shah Jahan. In rebellion, Shah Jagirs and Guru Arjan Dev to death. The antagonist the Sikhs. Then यहाँ पर बच्चों जो सिक्स थे वो काफ़ी हार्डी थे, fearless race became a great political changes को झेलते रहते थे। और यहाँ पर मुगल अथॉरिटी जो उन्होंने 16th सेंचुरी में भी उनको झेला बच्चों और उनको फेस किया। यहाँ पर रिलेशनशिप जब देखते हैं बच्चों सिक्स की और मुगल्स की, तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी उनके बीच में कड़वाहट आनी या खटास आनी। वो कब, जब वो रेबिलियंस को शाहजहां को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे बच्चों। देन उनके बीच में जिसमें देखा गया कि जहांगीर जो थे वो गुरु अर्जुन देव, देन उन्होंने कहीं ना कहीं बच्चों उनके एक डेथ का कारण बने थे वो इस वजह से। Who now organized themselves into a military group called the Khalsa under Guru Gobind Singh in 1699. He led the Sikhs into many fierce battles. By the time Guru Gobind Singh passed away in 1708, the Sikhs had become quite strong. The Sikhs issued coins by striking the names of the Guru Nanak and Guru Gobind Singh. They established their own administration. When the successor of Aurangzeb tried to bring them under control, they revolted. And the Sikhs struck their own coins and had their own administrative setup. Their army consisted of several well-trained compact units called missiles, and they collected taxes from the farmers in return for protection from the Mughal officials. During the late 18th century, the Sikh territories were extended from the Indus to the Jamuna, but they were divided under different rulers. One of them was Maharaja Ranjit Singh. Maharaja Ranjit Singh was the first Maharaja of the Sikh empires and was also known as Shera Punjab. Maharaja Ranjit Singh reneged all the groups and established his capital at Lahore in 1799. देन यहाँ पर जब हम बात करते हैं बच्चों कि सिख को लेकर, तो जब गुरु गोविंद सिंह की बात की तो यहाँ पर वो जब गुजर गए थे बच्चों 1708 में उनकी डेथ हो गई थी, तो सिख्स यहाँ पर काफ़ी हैड बिकम क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और सिख्स को इशू करा यहाँ पर बच्चों उनके कॉइन्स होते थे और नेम जो यहाँ पर जो कॉइन्स बनाए जाते थे ना बच्चों, तो गुरु गोविंद नानक के नाम से बनाए जाते थे, गुरु गोविंद सिंह के नाम से बनाए जाते थे और एस्टेब्लिश करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को। तो यहाँ पर बच्चों उनको क्या करना होता था, अपनी फोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होता था। और यहाँ पर उनके जब when the successor of औरंगजेब, यहाँ पर औरंगजेब जो सक्सेस के रूप में आना चाहते थे, ट्राई कर रहे थे, पूरा कंट्रोल करना चाहते थे पंजाब के ऊपर, देन यहाँ पर सिख्स ने क्या किया बच्चों, अपनी सेना को तैयार करने के लिए, अपने कॉइन्स को और ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत बनाने के लिए लोगों से कलेक्ट करना शुरू कर दिया टैक्सेस को, ताकि फार्मर से टैक्सेस ले पाए और अपना प्रॉपर तरीके से एक मुगल के अगेंस्ट अपनी सेना को तैयार कर पाए। एंड 18th सेंचुरी में जो सिख टेरिटरीज थी वर एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंडस से जमुना तक फैल चुकी थी और यहाँ पे डिवाइड हो चुकी थी अंडर द डिफरेंट रूलर्स के यहाँ, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह का नाम भी आ जाता है बच्चों। और महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो फर्स्ट महाराजा ऑफ द सिख एम्पायर कहलाए, जिनको जानते हैं शेरा पंजाब के नाम से महाराजा रंजीत सिंह। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों द जाट्स। Like the other states, the Jats consolidated their power during the late 17th and 18th century. The Jats were a clan of hardworking farmers. They lived in Delhi, Punjab and different parts of the present-day Haryana and Uttar Pradesh. They frequently rose in revolt against the Mughals revenue collections in the 17th century. Then यहाँ पर बच्चों और देखा जाए कि राजपूत आपने देखे, सिख्स देखे, उसी तरह जाट भी जो थे वो उनकी पावर के लिए जाने जाते हैं 17 और 18 सेंचुरी में भी। और जाट ज़्यादातर बच्चों हार्डवर्किंग फार्मर्स होते थे जो दिल्ली, पंजाब और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं, जिनमें यहाँ पर बच्चों एक रिवोल्ट जो हुआ था मुगल रेवेन्यू कलेक्टर्स के अगेंस्ट, तो उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट किया था।
Soon Churaman and Badan Singh, two capable leaders of the Jat, founded the state of the भरतपुर in राजस्थान. तो भरतपुर राजस्थान में पाए जाते हैं बच्चों ये टू कैपिटल और या कैपेबल लीडर्स आप इनको बोल देते हैं, चुरामन एंड बदन सिंह. नेक्स्ट है मैसूर. Hyder Ali established an independent kingdom of Mysore by uprising power from the Vaidya brothers. He won battles against the Nizam of Hyderabad and Marathas and the British. And he died the Second Anglo-Mysore War. He and his sons Tipu Sultan were able administrators and the generals. Both fathers and son fought against the British, and Hyder Ali defeated them in the First Anglo-Mysore War 1769. Tipu Sultan died fighting the British during the Fourth Anglo-Mysore War 1799. तो देन यहाँ पर बच्चों मैसूर की बात करते हैं तो मैसूर में यहाँ पर हैदर अली एस्टेब्लिश किया था उन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम अपना मैसूर के अंदर और अपराइजिंग पावर ऑफ वैद्यपुर ब्रदर्स. देन यहाँ पर बच्चों उन्होंने बैटल्स को जीता, वॉन किया किसके अगेंस्ट, निजाम ऑफ हैदराबाद के अगेंस्ट एंड ये मराठास एंड ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी. और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर बच्चों उनकी डेथ हो गई थी. देन उनके जो बेटे थे बच्चों उन टीपू सुल्तान और वो साथ में ही मिलकर लड़े थे. देन बोथ फादर एंड सन फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड यहाँ पर हैदर अली को हरा दिया गया था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर 1769 में. एंड टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर जो हुई थी वॉर 1799 में बच्चों. नेक्स्ट है द मराठास. One of the more important chieftains of the Bhojala clans was Shaji, a high official under the Bijapur kingdom. He brought of the Marathas into prominence by establishing their hold over the Deccan regions. And though Shaji can be termed as the founder of the confederacy, the credit goes to his son Shivaji Bhosle for carving out the separate empire for the Marathas. Born in 1627 AD, and Shivaji grew up to be is a fearless warrior under the influence of his mother Jijabai, who brought up by the narrating to him stories of the brave man and encouraged him to take pride in the Maratha culture. देन यहाँ पर जो मराठास की बात की जाएगी काफ़ी इंपॉर्टेंट चिफ्टियंस के रूप में काम किया गया है जिसमें बच्चों भोसला क्लैंस ऑफ वॉज शाहजी का नाम आता है. एक हाई ऑफिशियल्स रैंक पर बीजापुर में किंगडम में वो काम करते थे बच्चों और राजा के रूप में काफ़ी मराठास में वो काफ़ी पॉपुलर भी थे बच्चों. दक्कन रीजन्स के अगेंस्ट भी उन्होंने काम किया एंड यहाँ पर शाहजी ने टर्म किया फाउंडर ऑफ द कॉन्फ्रेंसी जिसमें उनको क्रेडिट दिया जाता है उनके बेटे शिवाजी भोसले को जिन्होंने पूरा सेपरेट एम्पायर जो मराठास के लिए काम किया वो पूरा का पूरा बच्चों चेंज कर दिया था जो कि पैदा हुए थे बच्चों 1627 एडी के अंदर. एंड शिवाजी की जो मदर थी बच्चों काफ़ी उनको एक वॉरियर के रूप में उन्होंने पैदा किया और एक तरह से बच्चों उनको जो शिक्षा दी गई पालना परोसना किस तरह से ब्रॉटअप किया गया उनका वो काफ़ी एक अच्छा था एनकरेज के साथ और ब्रेव पोएट्री स्टोरी पढ़ाते हुए उन्होंने अपने बच्चे को बड़ा किया था. एंड मराठा कल्चर को भी उनको हमेशा एनकरेज किया है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मराठा पावर जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज. Shivaji started on his mission of the conquest when he was just 18. In 1644-45 AD, within 11 years, he had laid the foundation of the Maratha Empire by capturing the whole of the Konkan. He built a fort of the Raigars and made his capital there. Then शिवाजी ने स्टार्ट किया बच्चों अपना मिशन सिर्फ और सिर्फ जब वो 11 साल के थे बच्चों 1644 से लेकर और 45 AD तक जस्ट 18 एंड उन्होंने बच्चों एक फाउंडेशन ऑफ मराठा एम्पायर तैयार किया था जो पूरा का पूरा कैप्चर कर रहा था पूरे कोंकण को. एंड उन्होंने बिल्ड किया था एक फोर्ट ऑफ रायगढ़ एंड मेड हिज कैपिटल देयर और वहां पर अपनी कैपिटल बनाई थी. टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ द रॉकी एंड माउंटेनियस टेरेन्स ऑफ द वेस्टर्न महाराष्ट्र, शिवाजी एंड हिज फॉलोअर्स launched surprise attacks on their enemies. The kind of the hidden warfare is called the guerrilla warfares. The elements of the surprise gave the Marathas a great advantage over their enemies. Unlike the Mughals who neglected the seaports, Shivaji built strong navy ports at the Swendagurs and the other places to protect his territory from the attacks through the sea route. He also befriended the Europeans to learn modern techniques to warfare from them. Aurangzeb became the Mughal emperor in 1658 AD.
देन यहाँ पर बच्चों काफ़ी एडवांटेज ले सकते हैं, टेकिंग फुल एडवांटेज, जिसमें रॉकी माउंटेन्स टेरेंस में जो वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर थे, एंड शिवाजी के काफ़ी फॉलोअर्स वहाँ पर आ चुके थे बच्चों, और वो काफ़ी चीज़ें देखकर हैरान थे, जिसमें वो देखते थे काइंड ऑफ हिडन वॉरफेयर के बारे में, किस तरह से युद्ध लड़ा जाता है, और छुप के गुरिल्ला वेयरफेयर के बारे में उन्होंने सीखते थे। वो ज़्यादातर बच्चों यूरोपियन से अपना फ्रेंडली नेचर रखते थे ताकि नई नई टेक्निक्स को सीख पाए और उनसे युद्ध करने के नए नए तरीके भी वो सीख पाए। औरंगजेब यहाँ पर बन चुके थे बच्चों मुगल एम्परर इन 1658 AD के अंदर। Both the Sultan of the Bijapur and the Mughals were alarmed at the growing powers of the Shivaji. Attempts were made to curb it. और यहाँ पर बच्चों सुल्तान ऑफ बीजापुर की बात की जाए, मुगल्स की बात की जाए, दोनों के दोनों यहाँ पे ग्रोइंग पावर को देखते हुए शिवाजी को काफ़ी हैरान थे और उन्होंने अटेम्प्ट किया था मेड टू curb it. Then यहाँ पर the conflict between Aurangzeb and Shivaji continued when the former deputed Raja Rai Singh to fulfill his Deccan or subordinating the Maratha chief and to control the Deccan. Raja Jai Singh de-signs the fort of the Purandars, and the finally Shivaji had to sign the treaty of the Purandars. According to the treaty, Shivaji was to accept the Mughal overlordship. He was the surrenders 23 forts to Aurangzeb and meet the emperor at his court. It is said that owner of the agreements, Shivaji went to meet Aurangzeb, but the Mughal emperors humiliating him, and on to retaliation, Shivaji was put under house arrest. After his escape from Agra, Chhatrapati Shivaji and resumes his activity against the Mughals. He proclaimed himself Chhatrapati in 1674 at the Raigars and thus laid the foundation of the Maratha state. He captured Jinji, Vellore and the parts of Mysore from his death in 1680. देन यहाँ पर बच्चों जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था औरंगजेब एंड शिवाजी के बीच में कंटिन्यू चलता ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जब बात करते हैं राजा जय सिंह की, तो बच्चों वो क्या चाहते थे, वो उनका एक ड्रीम था, सपना था कि मैं पूरा मराठा का चीफ बनूं, पूरा कंट्रोल करूं दक्कन के ऊपर। और राजा जय सिंह ने ये चीज़ें की, डिसाइड करी फोर्ट ऑफ पुरंदर्स को लेकर, और फाइनली शिवाजी ने किया बच्चों पूरा एक ट्रीटी साइन कर दी पुरंदर के लिए, और इस ट्रीटी में बच्चों बताया शिवाजी वॉज द एक्सेप्ट द मुगल्स ओवरलैपिंग शिप्स एंड ही वॉज सरेंडर 23 फोर्ट्स ऑफ द औरंगजेब एंड मीट द एम्परर एट हिज कोर्ट। और वहां पर बच्चों मिलने के लिए गए तो उनको कैप्चर कर लिया गया, उनको कैद में कर लिया गया। उसके बाद बच्चों अलग अलग एरिया में और अलग अलग जगह पर उन्होंने अपनी एक्टिविटीज दिखानी शुरू कर दी, प्रोक्लेम कर दिया छत्रपति को इन 1674 में एंड रायगर्स, एंड उसके बाद बच्चों फाउंडेशन ऑफ मराठा स्टेट, जिसमें उन्होंने कैप्चर कर दिया था जिंजी को, वेलोर्स को, पार्ट्स ऑफ मैसूर को, और यहाँ पर बच्चों उनकी डेथ के बाद 1680 में। नेक्स्ट है बच्चों रिसर्च जंक्शंस के अंदर। सो व्हाट डू यू फाइंड most attractive about the life and the personality of the Shivaji? Find out more about 3 major victories of Shivaji and their significance. And knowledge junction के अंदर बच्चों आपको पता चलेगा कि रणजीत सिंह was born on 13th November 1780 in Gujranwala cities, Punjab, now in the modern day Pakistan, into a Sikh Jat family of the Sandwalia clans, or to Sardar Maha Singh's Sukinder Cherias died in 1792, and the Sardani Mai Raj Kaur, the daughter of the Raja Gajpat Singh and of Jind state. Next है बच्चों gasp and gain के अंदर Shivaji's coronations was a 9-day ceremonies, and during like ceremonies he was bathed and waters, oil, honey, milk curds, ghee, sugar and gold coins. His throne was made of gold and covered with lion and tiger skins. तो यहाँ पर बच्चों चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर से रिलेटेड दिए गए हैं टर्म्स टू लर्न, तो ये याद करेंगे और मेन पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं बच्चों, लेट्स डिस्कस दीज पॉइंट्स। First is the 18th century marked the decline of the Mughal Empire after Aurangzeb's death in 1707. Aurangzeb's Deccan policy and the inefficient administration weakened the Mughal Empire. Later Mughal emperors like the Bahadur Shah I and the Mahmud Shah and failed to control powerful governance. And inventions by the Nadir Shah and the Ahmad Shah Abdali further destabilized the empire. Independent states like Awadh, Bengal and Hyderabad emerged from old Mughal provinces. Rajputs enjoyed autonomy in their Watan Jagirs and expanded their territories. Sikhs under leaders like Guru Gobind Singh formed a strong military group and they resisted Mughal control. The Jats consolidated power and founder of the state of the Bharatpur. Hyder Ali and the Tipu Sultan established Mysore as an independent kingdom fighting against the British.
The Marathas, led by Shivaji, built a strong empire using the guerrilla warfare techniques, and Shivaji's successors continued to the resist Mughals and the later British dominance. The chapters highlighted political shift and the rise of the regional powers in 18th century India. तो चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है बच्चों. चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट द एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर बच्चों.